You all should believe that this is a new day for you. तो जब तक आपके मन में वो खटास, वो जो है कि तन्हाई, वो जो है कि रुसवाई, वो जो है कि पूरी तरीके से वो दुखी आत्मा जब तक बैठी हुई होगी, तब तक आप किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर सकते. एवरीथिंग विल लुक फेक फॉर यू. क्या यही बाबा की धूलों को लेकर हम अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान करने वाले भारतीय हैं? क्या हम बाबा की धूलों को माथे पे लगा के हम जो है आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या हम बाबा के पैरों की धूलों को लगाकर हम जो है एंटीलिया जैसा, मुकेश अंबानी जैसा फ्लैट या जो है कि बहुत बड़ा बंगला या बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले हैं? ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है. आप अरे कर क्या रहे यार, करना क्या चाहता? अंग्रेजी ऐसे सिखाई नहीं जाती, ये तो कुछ नया कर रहे हैं यार. अंग्रेजी तो हमने देखा है कि अंग्रेजी एक पैटर्न होता है अंग्रेजी सिखाने का. हमने बहुत पुराने टीचर्स को देखा. ये क्या जो है आंखों में पट्टी बंधवा के नचवाने लगता है यार, गजब काम कर रहा है. तो अब ये होता है इन्फ्लुएंस. तो इन्फ्लुएंस गोज इन टू डायरेक्शंस. वन इज द पॉजिटिव, अनदर इज द नेगेटिव. आस्क क्वेश्चन ईच एंड एवरी टाइम, बिकॉज अल्बर्ट आइंस्टाइन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट सेड इन द वर्ल्ड, दैट if you want to broaden your thoughts, if you want to develop your education, if you want to develop your mind, so just do one thing, ask question. सोच को बढ़ाओ, नजारा बदल जाता है. सोच को बदलो, इशारा बदल जाता है. सोच को समझो, जमाना संवर जाता है. सोच को जानो, लोग आपकी इबादत करने लगते हैं. सोच को पहचानो, लोग आपसे बगावत नहीं करते. सोच को समझो, लोग आपकी इनायत करने लगते हैं. सोच को अच्छी करो, लोग सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करने लगते हैं. मोहब्बत करने, राइट. आज जो मैं पढ़ा रहा हूं बिना नमाज के, मैं ऊपर वाले का आशीर्वाद ले रहा हूं, क्योंकि पढ़ाना भी तो एक पुण्य और सवाब का काम है. किसी को कुछ बताना भी तो पुण्य और सवाब का काम है. लेकिन बाबा की तरह धूल माथे पे लगाना पुण्य का काम नहीं है, जहां पे 122 लोग मर जाते हैं. We are here just to show ourselves and express what we have, because we believe in the belief of the belief. We believe in the belief of the belief that yes, we can do it, because nothing is that much hard, nothing is that much difficult. So we don't need to worry about anything. We need to just enjoy each and everything, whatever comes on the way. Whatever comes on the way, let's celebrate and let's enjoy it. Same way, for the 15th of July, we have this audition, we have this selection round, and this is a kind of, it's on the way. It's not the journey, it's just, the process. And it is just a formality, a process, a kind of task, a kind of activity which will build your confidence and which will also make us believe that yes, we can select you for the final round and for the 15th of July, ladies and gentlemen. So now, we have a very special time and a very special day today. But first of all, before I proceed this session, I would like to tell you that today I was having a stroll in the park, and then I was having some exercise, like a morning walk I was having. There was a guy and he was staring me for a long time. I was literally very confused and I was thinking that, excuse me, why this guy is actually staring at me? Then that guy comes after some time and asks to me, "Sir, are you Abdullah, sir?" I said, "How do you know me?" Then he was playing my video and he showed me, "Sir, is it you?" Because I was confused that what are you doing in this park? I was watching your video because I have subscribed the Happiness Institute channel. When I saw this and when I saw you, I was literally very confused. But I thought, let's ask to this person, that is he Abdullah, sir? Then I said, "Yes, I am Abdullah, sir." He said, "Sir, I want to take admission. Please give me some discount." Please give me some discount. And I said to him that park में discount मांग रहे हो, आ जाओ ऑफिस में डिस्काउंट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अब पूछ ही लिए हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. तो ऐसी कुछ घटनाएं हमारे साथ हो जाती है जहां पे हम सब जो है कि पहचाने जाते हैं, और वही पहचान हमें बताती है कि हाँ, हम समाज में कुछ ना कुछ कर रहे हैं. वी आर डूइंग समथिंग. तो अगर आप कहीं भी पहचाने जाएं, not to the big level, to the small level, not to the district level, but to the village level, not to the country level, but to the state level, or not to the state level, just to a tehsil or sub district level. So you are appreciated and you are the person of the charm, you are the person of some works, you are the person of some achievements, you are the person of some belief, trust, and you are the person of some
good deeds. That's why you are recognized. So we all must believe in the good deeds. We all must believe in the Almighty God, in the Khuda Ishwar Bhagwan, that there is a great space for you. And there is a great, decorated space and zone for you that God has decorated for you all. For me, for you, for everyone. We all should celebrate. That's the process. That's the, task. See, I am here very excited, very happy. And I do this task every day, each and every day. This should be a boring task for you, Abdullah. Come on, man. You go daily on the stage. You just give lectures, right? You should be bored of this, this boring task. But I don't feel bored because I always feel new. I renew myself, I re-energize myself, I re-encourage myself, I re-support myself, and I rethink about myself, I re-feel about myself. Because I feel, yeah, everything is new for me. Every day is new for me. Every moment is new for me. And that's why you all should believe that this is a new day for you. तो जब तक आपके मन में वो खटास, वो जो है कि तन्हाई, वो जो है कि रुसवाई, वो जो है कि पूरी तरीके से वो दुखी आत्मा जब तक बैठी हुई होगी, तब तक आप किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर सकते. एवरीथिंग विल लुक फेक फॉर यू. आपके लिए हर चीज फेक लगेगी. जैसे हाथरस उत्तर प्रदेश के इलाके में एक प्रोग्राम हुआ बाबा जी का. वहां बाबा जी आते हैं, लेक्चर देते हैं, सभी भक्तों को कुछ ना कुछ बताते हैं. उसके बाद वो जाते हैं, माइक में ऐलान करते हैं कि मैं जब जाऊं तो मेरे कदमों की धूल को तुम लेकर किसी के माथे पे लगा देना, और उस माथे पे जब लगाओगे तो उसकी बीमारी, उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. और भक्त इस तरीके से धूल लेने के लिए दौड़े कि 122 लोग खुद धूल बन गए. जरा सोचिए कि हमारा भारत देश कहां जा रहा है. वेयर आवर इंडियंस एंड वेयर आवर इंडिया, वेयर आवर कंट्री एंड नेशन इज गोइंग. क्या यही बाबा की धूलों को लेकर हम अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान करने वाले भारतीय हैं? क्या हम बाबा की धूलों को माथे पे लगा के हम जो है आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या हम बाबा के पैरों की धूलों को लगाकर हम जो है एंटीलिया जैसा, मुकेश अंबानी जैसा फ्लैट या जो है कि बहुत बड़ा बंगलो या बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले हैं? ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है. आपको सफलता का रास्ता दिखाकर बाबा, मौलवी, जो भी ये ढोंगी कह सकते हैं, वो सफल हो जाते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ विफल हो जाते हैं. तो आज की कुछ ऐसी बात है, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोइंग टू ब्रॉडन द थॉट्स. हम अपनी सोच को बड़ा करने जा रहे हैं. बिकॉज व्हेनेवर वी स्पीक, जब हम बोलते हैं तो हमारी वाणियों से, हमारे शब्दों से लहलहाता हुआ जो शब्द निकलता है, जो लफ्ज निकलता है, उस लफ्जों में बड़ी तासीर और बड़ी जो है कि एक तरीके से ताकत होती है. Because whenever somebody speaks, for example, somebody watches you on YouTube, you're talking about the women empowerment, that why is it important actually? People watch it, people get inspiration from it. People think कि एक लड़की खड़ी होकर 18 साल की लड़की, she is speaking something for the women empowerment and women development. She gets so much inspiration, and all the ladies sitting in the corner of the villages, they get inspiration. बड़ी उनको प्रेरणा मिलती है, बड़ी सोच मिलती है, उनको प्रोडन थॉट्स मिलती है. तो आप सोच लीजिए कि आप तो पुण्य और सवाब का काम कर रहे हैं बिना पूजा, बिना नमाज के. आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, बिना नमाज के मैं ऊपर वाले का आशीर्वाद ले रहा हूं, क्योंकि पढ़ाना भी तो एक पुण्य और सवाब का काम है. किसी को कुछ बताना भी तो पुण्य और सवाब का काम है. लेकिन बाबा की तरह धूल माथे पे लगाना पुण्य का काम नहीं है, जहां पे 122 लोग मर जाते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आज भी देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बिकॉज आवर माइंड हैज नॉट बीन डेवलप्ड. हमारा दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ है कि आज भी हम शीशे टूटने को गलत मानते हैं, बिल्ली का रास्ता काटने को गलत मानते हैं, काला कुत्ता देखने को गलत मानते हैं, दूध का गिर जाना गलत मानते हैं, रात में झाड़ू लगाना गलत मानते हैं, नाखून को काट देना गलत मानते हैं. ऐसी बहुत सारी चीजें जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हम बहुत गलत मानते हैं, क्योंकि हमारा माइंड आज भी उसी सीमाओं में सीमित है जिस सीमाओं में हमारे दादा पूर्वज हमें रख के गए. तो थिंक अबाउट इट. आप इसके बारे में सोचिए कि व्हाई योर माइंड इज नॉट डेवलपिंग. आपका दिमाग विकसित क्यों नहीं हो रहा है? जरा मुझे आप बताइए कि ये करने से ये हो जाता है. मैं तो नहीं मानूंगा, बिकॉज मैं लॉजिकल हूं. आई एम लॉजिकल. आई डोंट फील एंड आई डोंट बिलीव दोस परंपराज विच इज लाइक विच इज जस्ट डिस्गस्टिंग थिंग. बिकॉज वी हैव टू ब्रॉडन आवर थॉट्स. आज के स्पीच का या आने वाली स्पीचेस का या हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट का मकसद सिर्फ यही है कि आपके दिमाग को, आपकी सोच को बिल्कुल उस गड्ढे की उस गहराई में ना लेके जाए जहां से आपका निकलना हाथी की तरह इम्पॉसिबल हो जाए, जहां से आपका निकलना पूरी तरीके से जो है कि इम्पॉसिबल हो जाए, आप निकल ही ना पाओ और आप जिंदा दफन हो जाओ. तो यू शुड नॉट फील इट, यू शुड नॉट डू इट. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी जस्ट टेल यू, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आवर माइंड इज क्वाइट इजी टू बी इन्फ्लुएंस्ड. Our mind is quite easy. I believe that everybody's mind is quite, easy. आप भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस होके ही आए हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट में. आप इन्फ्लुएंस होके आए. पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस हुए तो आए, कुछ लोग निगेटिव वे में इन्फ्लुएंस हुए
तो आज भी गाली दे रहे हैं, ये अब्दुल्ला कौन है, इसको पकड़ लूंगा पीटूंगा, ये क्या कर रहा है इधर, ये क्या लड़कियों लड़कों को कहता है यस आई कैन डू इट, राइट। तो अब मतलब वो दे वुड बी थिंकिंग अबाउट इट, वो ऐसे ही सोच रहे होंगे क्या बकवास है, बंदर जैसा नाच कर रहा है, अरे कर क्या रहा है यार, करना क्या चाहता, अंग्रेजी ऐसे सिखाई नहीं जाती, ये तो कुछ नया कर रहे हैं यार। अंग्रेजी तो हमने देखा है कि अंग्रेजी एक पैटर्न होता है अंग्रेजी सिखाने का, हमने बहुत पुराने पुराने टीचर्स को देखा, ये क्या जो है आंखों में पट्टी बंधवा के नचवाने लगता है, यार गजब काम कर रहा है। तो अब ये होता है इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस गोज इन टू डायरेक्शंस, वन इज द पॉजिटिव, अनदर इज द नेगेटिव। सेम वे in 2014 or 15 I was very tensed, I was very frustrated and irritated and depressed in my life. I was mentally and psychologically very weak, so I went to a exorcism is called wajhati ojhapan. So I went to exorcist, and that time he influenced me a lot, and he influenced me that much that every day I used to sit with him on his takhta. And that time what happened with me, that he just influenced me that much that ही सेट कि मैं आत्मा को बुलाने लगा हूं। ये देखो मैं जो है कि वो तस्बीह जो तस्बीह रहती है, तो तस्बीह में देखो जो है कि ये मूव करेगी, तो देखो ऐसे मूव हो रही है, आत्मा आ गई। अब वो ऐसे ऐसे यहां से, ये टेक्निक होती है ना, ये लॉ ऑफ फिजिक्स जो भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ पावर। अब वो ऐसे कर रहा है, मैं कर रहा हूं, हाँ आत्मा आ गई। फिर वो कैसे ऐसे कर रहा है, हाँ आत्मा ऐसे झूल रही है, फिर ऐसे कर रहा है, फिर आत्मा ऐसे झूल रही है। तो उसने मेरे ही घर में किसी का इंतकाल, किसी का देहांत हुआ था, और उसने कहा कि मैं आपके घर में जिसका डेथ हुई है उनको बुलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत इन्फ्लुएंस हो गया, आई गॉट वेरी इन्फ्लुएंस्ड। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बुलाता हूँ, बुलाया। अब वो ऐसे ऐसे हिलने लगे, वो कह रहा सलाम करो, मैंने कहा सलाम वालेकुम, हाँ। फिर कह रहा है, फिर ऐसे ऐसे हिलने लगे, कह रहे देखो जवाब दे रही, वालेकुम अस्सलाम। मैं कहा अच्छा। कह रहे पूछ लो कहाँ रहते हो, क्या है, ठीक ठाक है। मैंने कहा हाँ सब ठीक ठाक है। ठीक है आप, हाँ। तो तस्बीह ऐसे हिल रही है, करीब देखो बता रहे हैं हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब्दुल्ला पढ़ा लिखा हुआ इंसान भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। हम भारतवासियों में तो 80% लोग पढ़े लिखे नहीं, तो वो सारा सोचिए कि इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते इन चीजों से, हिलने वाली चीजों से। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं खुद इन्फ्लुएंस हो गया कि आत्मा मेरे घर में जो मरा हुआ इंसान है वो यहां आके झूल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इतना इन्फ्लुएंस हो गया। और मैं आपको हकीकत बताता हूं कि उसके बाद मैं जब थोड़ा माइंड डेवलप किया अपना, चीजें ब्रॉड किया, पढ़ने लगा, सारी चीजें जानने लगा, तो बाद में वो इंसान मेरे पास एक बार शाम में आता है दौड़कर, वही इंसान जो मुझे कभी सलाह दे रहा था, अब्दुल्ला भाई अब्दुल्ला भाई अब्दुल्ला भाई। मैंने कहा बताइए। कह रहा मैं जिंदगी में, जीवन में बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्योंकि बहुत स्ट्रेस में, बहुत तनाव में रहता हूं। जो मैं ये काम करता हूं ना, ये हिलाने वाला, ये चीजें करने वाला, लोगों को जो है कि भड़काने वाला, लोगों को गुमराह करने वाला, मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूं। मेरे घर में कोई बीमार रहता है, कोई परेशान रहता है, मैं झूठ बोलता था, कुछ मुझे रास्ता बताइए। मैंने कहा ये काम छोड़ दीजिए, सही हो जाएंगे आप। उन्होंने वो काम छोड़ दिया, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अभी खुश। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिकॉज रॉन्ग इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस इज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड। एंड वी पीपल, मैं आपको बता रहा हूं, आप सब लोग बैठे हुए हैं, लोग बहुत इजीली आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी इंसान से, किसी इंसान से। आप तेरी बताता हूं आज भविष्य में क्या होगा। अरे बाबा पकड़ो ना कलाई जरा। बाबा जी कलाई कैसे पकड़ रहा है वो नहीं क्लियर है, लेकिन कलाई पकड़ लो बाबा जी, बता दो आज मेरा भविष्य। आज मैं अपना भविष्य लेके नहीं चलता हूं, बाबा तेरे हाथ में मेरा भविष्य, खत्म। वाह तेरी, अरे भाई क्या कर रहे। अब इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, मां की कसम। इट फील्स लाइक कि यार यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर एजुकेटेड, यू आर लिटरेट, यू आर टेकिंग एजुकेशन, यू हैव ब्रॉड थॉट्स, व्हाट आर यू डूइंग मैन? You are just, believing that thing like which is absolutely fake, which has no space in the world. You are believing that and trusting that. What happened to you? Just broaden your thoughts. Ask question for each and everything. Whether it's religious, it's spiritual, it's logical, it's educational, it's motivational, it's inspirational, it's informative, it's anything. Just ask question. Ask question each and every time. Because Albert Einstein, one of the greatest scientists, said in the world that if you want to broaden your thoughts, if you want to develop your education, if you want to develop your mind, so just do one thing, ask questions. सवाल करिए, हर बात पे सवाल करिए। हर बात पे सवाल करना हम सबके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। अब्दुल्ला सर आप कह रहे हैं कि मैं आपको पढ़ा देता हूं, आपको सिखा देता हूं, मेरा 1 महीना हो गया, मैं नहीं सीख पाया, मेरी ये कमजोरी है। टेल मी, मुझे बताइए मैं क्यों नहीं सीख पा रहा। आस्क क्वेश्चंस। अब्दुल्ला सर 90 लोगों को सिखा दिया, 10 लोगों को क्यों नहीं सिखा पा रहे? आस्क क्वेश्चन, सवाल करिए उनसे, तब तो उनके माइंड में कुछ लगेगा कि गलती कर रहे हैं अब्दुल्ला सर।
नहीं तो अब्दुल्ला सर पता क्या चला कि अपनी बांसुरी बजाते रहेंगे। अब्दुल्ला सर इज अ ग्रेट टीचर, क्योंकि 90 लोग तारीफ करें, 10 लोगों का सवाल करने का हक बनता है, और उन सवालों से अब्दुल्ला सर भी सुधरेंगे और वो 10 लोग भी सुधरेंगे। सोच को बढ़ाओ, नजारा बदल जाता है। सोच को बदलो, इशारा बदल जाता है। सोच को समझो, जमाना संवर जाता है। सोच को जानो, लोग आपकी इबादत करने लगते हैं। सोच को पहचानो, लोग आपसे बगावत नहीं करते। सोच को समझो, लोग आपकी इनायत करने लगते हैं। सोच को अच्छी करो, लोग सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करने लगते हैं। मोहब्बत करने, राइट शुड बी द अल्टीमेट गोल।